Assalamualaikum everyone. We are live now as per the schedule. Today is our session, second session we have, and it's about COVID-19 and Eid ul Adha. So a warm welcome to all of you. And जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि हम अब एक जो सिनेरियो बन चुका है, ये एक तरफ हमारे पास ईद है, इसके साथ मुसलमानों के इमोशनल स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स भी अटैच हैं। और कुछ भी हो जाए सिचुएशन, चाहे जितनी मर्जी भी खराब हालात हों, लेकिन मुसलमानों का जज्बा जो है वो अपनी इबादत को लेकर, अपनी सेलिब्रेशन, अपने इवेंट जिनका अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था उसको लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी जो मुस्लिम उम्मा है उसको इस सिचुएशन में गाइड करें कि वो लोग किस तरह से कोविड-19 और ईद को साथ लेकर चल सकते हैं, जिसमें उनकी ना तो इबादत में कोई खलल आए, ना ही उनकी सेलिब्रेशन में कोई इश्यूज हों, और ना ही उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हों। तो इस लिहाज से हम लोगों ने, जो हमारे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने अपना नाम मनवाया हुआ है, तो हम लोग वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। सबसे पहली हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर। शी इज़ PhD in microbiologist, and she is ambassador of humanitarian from Goodwill Ambassador. She is associated with American Society for Microbiology and National Academy of Young Scientists, and she is author of a book and a mystery, and she has 11 international and national research publications. उसके अलावा माशाल्लाह से she has won a lot of awards including Women Achievement Award 2019, Healthcare Excellence Award, and 2017 Women's Day Award from Mehak NGO. Welcome, ma'am. Thank you so much, Rakshinda, for this lovely introduction, and thank you again for inviting me in your very enthusiastic program. Thank you so much. Okay, so our next guest is Dr. Abdul Rashid. He is a cardiologist at Karachi Institute of Heart Disease, ex-executive deputy director of KIHD, ex-HOD cardiologist, Abbasi Shahid Hospital and KMDC. He is practicing for almost last 4 decades as clinical and interventionalist cardiologist, and he is Joint Secretary PHL. Welcome, sir. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन का. Thank you very much. Can you hear me now? Can you hear me? Yes, you are audible. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Thank you very much. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया आप लाने का. जी सर. Our third guest is Dr. Mukhtar Ahmed Bhutto. He is ex-political advisor to the chairperson PPP, one of the major political party of Pakistan, and he is senior federal minister advisor to the Begum Nusrat Bhutto, as well as he has worked as member BOG in Ministry of Culture and Tourism, IDP. He's currently working as family physician in different hospitals of Karachi. He has done his post-graduation from England UCL. Welcome, sir. Welcome to the show. Dr. Mukhtar. I think there are some no. Okay, yeah, thank you very much. I think voice is not getting as per our expectations. कहीं ना कहीं कोई abruptions आ रहे हैं. जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको. All right. So we welcome you from the official page of the Youth Think Tank. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. You are audible. Can you? Yes, sir. You are audible to us. Hello. Hello. मुझे जो लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है. Maybe there are some issue. We'll try to fix them. So I think we should start the question answer session from Dr. Sayyeda Sadaf Akbar. And ma'am, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ को आई थिंक हम इस सेशन को ज़रा मैनेज कर लेते हैं 3 हम ऑलमोस्ट डिवाइड करके कि सबसे पहले हम लोग प्रेयर्स का देख लेते हैं कि एक ईद उल अज़हा आ रही है, हमारी इबादत भी होंगी इसके साथ, उसके बाद कैटल्स होंगी, स्लॉटरिंग होगी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट है जो कि मेन फरीज़ा ईद उल अज़हा का, कि हम लोग इससे जो है वो हमारे जो गरीब मुसलमान होते हैं हम उनमें भी चैरिटी करते हैं, उनको गोश्त फराम करते हैं, तो एक वन ऑफ द मेन पार्ट
सो उसके बाद हम लोग जो हेल्थ पर तो बात होगी. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जिस तरह के हम देख सकते हैं कि अभी आजकल हम हमारे सब घरों में सब इन्वॉल्व हैं जानवरों के साथ, उनकी देखभाल कर रहे हैं और बच्चे बड़े सब बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं. तो इस सिचुएशन में जो SOPs हैं, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 में जो है वो केसेस में थोड़ी कमी भी आई है, जिसकी वजह से लोगों में एक मिसकंसेप्शन आ रही है कि शायद ये खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है और अब दे आर फ्री टू सेलिब्रेट एज पर देयर नॉर्मल रूटीन. सो इस बारे में आप थोड़ा सा हमारी आवाम को गाइड कर दें कि ये क्या सिचुएशन है और इससे उन्होंने किस तरह से ईद उल अज़हा और कोविड-19 को साथ लेकर चलना है कि जिससे ना तो उनके सेलिब्रेशंस में कोई प्रॉब्लम आए, ना ही उनकी हेल्थ पर इस चीज़ का कोई गलत असर पड़े. Yes, ma'am, over to you. देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे अभी कोविड-19 के हवाले से हमारे पास अब केसेस कम देखने में आ रहे हैं कि जो अभी ईद उल फितर के बाद जो एक पीक वाली कंडीशन थी, तो अब उसके बाद जो है नंबर ऑफ केसेस काफ़ी हद तक कम हुए. लेकिन अभी भी हमारे दरमियान कोविड-19 से मुतासरा अफराद मौजूद हैं और जब तक हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाती है, तब तक हम इस बारे में कोई मुस्तनद बात नहीं कह सकते कि कोविड-19 खत्म हो गया या अब हमारे बीच कोई भी जो है कोविड-19 से मुतासरा फर्द मौजूद नहीं है. अब मसला ये हुआ है कि ज्यादातर अब हमारे पास जो है एसिम्प्टोमेटिक पर्सन ज्यादा आ रहे हैं कि उनमें कोई बज़ाहिरन कोई भी साइंस सिम्टम्स मौजूद नहीं होते हैं और फिर अब लोगों ने जो है लोगों की तरफ से जो है थोड़ा बहुत अब टेस्ट का रुझान भी जो है कम हुआ है कि अब लोग टेस्ट करवाने के बजाय जब उनको थोड़े से भी साइंस सिम्टम्स आते हैं तो या तो वो खुद को जो है आइसोलेट कर लेते हैं या फिर अब बहुत से लोग जो है वो समझ रहे हैं कि बस इसमें बस ऐसे आपको जो है एक नॉर्मल लाइफ जो है वो करना होता है. बहुत से लोग अब जो है आइसोलेशन की तरफ भी नहीं जा रहे हैं. तो इसमें अभी हमें मजीद एहतियात करने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता अगर हमने अभी आगे जाकर जो है इस जो है तमाम एहतियाती तदाबीर को SOPs को बालाए ताक रखकर बिल्कुल हम लोग अगर पहले जैसी एक नॉर्मल लाइफ जो है अगर हमने गुजारना स्टार्ट कर दी तो खुदा ना खास्ता जो है आगे जाकर एक कोविड-19 के हवाले से एक खतरनाक सूरत हाल हो सकती है. तो ईद उल अज़हा जैसे कि अभी आ रही है तो हमें ईद उल अज़हा बिल्कुल वैसे ही मजहबी जोश और जज्बे से उसी बिल्कुल एक हमें अकीदत के साथ और जो हमारे पास असल कुर्बानी की रूह होती है कि हमें जो है अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करनी है और जो उसका गोश्त है उसको मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाना है और जो उसकी जो एक सेलिब्रेशन होती है वो हम बेशक करें. लेकिन जो हमारे पास कोविड-19 के हवाले से SOPs हैं, जो बेसिक एहतियाती तदाबीर हैं कि सबसे पहले तो हमें जो है अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है. अब जैसे कि अभी आपने कहा कि आजकल हर घर में जो है जानवर जो है कुर्बानी के जानवर आ गए, छोटे बच्चे बड़े सब लोग उससे जो है इंजॉय कर रहे हैं, उससे जो है खेल रहे हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो अब इसमें कोई वैसी बात नहीं है. लेकिन उसके बाद अब अगर छोटे बच्चे घर में अब वो अपने जो है कुर्बानी के जानवर को जो है खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उनको जो है टहराने के लिए लेके जा रहे हैं, तो जब वो घर आते हैं तो उसके बाद उनकी प्रॉपर हाइजीन का जो है ख्याल रखें, उनको अच्छे तरीके से वॉश करवाएं और जब भी वो खाना खाने के लिए बैठे हैं उनके हाथों को प्रॉपर तरीके से जो है उसको वॉश करवाना लाजमी है. और फिर उसके साथ साथ पूरे उनके जो ड्रेस वगैरह और ये चीज सिर्फ जो है बच्चों की हद तक नहीं, बड़ों को भी जो है अभी इन तमाम SOPs पर जो है इम्प्लीमेंट करना है. और फिर उसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें कि आप क्योंकि देखें आजकल क्या होता है कि वहाँ पास जैसे गली मोहल्लों में या फिर फ्लैट्स में एक जगह ही जो है टेंट लगाकर तमाम जानवरों को रख दिया जाता है और फिर वहां पर बिल्कुल एक मजमा सा लग जाता है, एक भीड़ लग जाती है कि उस फ्लैट के या फिर उस मोहल्ले के तमाम लोग वहीं पर ही मौजूद होते हैं. तो वहां पर जो है इस तरह की बीमारियां, क्योंकि देखिए आजकल जो है ना जो है हमें सिर्फ कोविड-19 का सामना नहीं है, बारिशों के बाद और भी बहुत सारी ऐसी जो है बीमारियां या मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज सामने आ रहे हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी ट्रांसफर हो सकते हैं.
तो हम अगर एक जगह हम गैदरिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो है ना पूरे फ्लैट्स वाले या पूरे जो है गली मोहल्ले के लोग रात भर वहीं पर ही मौजूद होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वहां पर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैलने के खतरात या फिर चांसेस, तो हम जो है वहां पर जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करें, और फिर ये कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, और मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ जो जब हम घर वापस आए तो उस टाइम मुकम्मल तौर पर अपनी पर्सनल हाइजीन का हम जो है बेसिकली ख्याल करें, और खासकर अगर आपके घर में बुजुर्ग अफराद हैं और फिर या फिर कोई ऐसे में मुब्तला लोग हैं जो आसानी कोविड-19 के साथ साथ और भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, तो हमें जो है अभी भी ईद उल अज़हा के ज़माने में भी इन तमाम SOPs को अपने ऊपर भी, अपने घर वालों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि खुदा ना खास्ता हमें जो है ईद उल अज़हा के बाद ईद उल फितर वाली जो है सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़े। तो हमें यही सब जो है इन जो है एहतियात को हमें जो है अभी इम्प्लीमेंट करना है। All right. So, Dr. Abdul Rashid, जी, can you hear me? Yes. जी, Yes, I can hear you. Yes, आप जो हैं वो all right. So, हमारे पास इस तरह से majority of our people, especially elderly people, they are in one or another way, they are cardiac patients. So they have different kind of cardiac related diseases. So and in this condition we have COVID-19 as well. और उसके बाद जब कुर्बानी होगी तो हम देखते हैं कि एक नेचुरल सी एक फेज आता है कि भाई हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने एल्डर्स को भी इस सेलिब्रेशन में शामिल किया जाए। घर में डिफरेंट किस्म के खाने पकते हैं तो उससे रिलेटेड भी। सो आप कैन यू गाइड अस कि किस हद तक जो है वो एक अगर BP पेशेंट है या फिर कोई और उससे दिल से रिलेटेड मसला है तो वो किस तरह से वो अपनी इस नीड को फुलफिल कर सकता है? थैंक यू वेरी मच। देखें रक्षंदा, सिंपल बात ये है कि हमें हर चीज़ में एतदाल करना चाहिए। एक बात देखें, ये जो ईद इस दफ़ा आई ईद उल अज़हा, ये पिछली ईदों के मुकाबले में डिफरेंट ईद है कि वी आर सेलिब्रेटिंग इन कोविड-19 की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को पर कदम डालनी है। जो भी SOPs बताए गए हैं, अगर हम उन SOPs के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो हमें ये डर है कि जैसे अभी सदफ कह रही थी कि वही हाशर ना हो जो कि ईद उल फितर के बाद हुआ था। हम लोग ने अभी भी मेरे पास पेशेंट आते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि कोविड कोई बीमारी है, मतलब लोगों को अभी भी यकीन नहीं है। देखिए, कोविड इटसेल्फ ना दिल की बीमारी करता है, ना ब्लड प्रेशर करता है, ना डायबिटीज करता है। कोविड सिर्फ एक दिल का खास मर्ज कर सकता है जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होता है, जैसे हम कहते हैं वायरल मायोकार्डाइटिस। वायरल मायोकार्डाइटिस एक अलग चीज़ है जिसके अंदर दिल सूज जाता है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक वाहिद चीज़ है जो कोविड-19 से हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है, किसी को चेस्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी है, किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, किसी को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, किसी को अनकंट्रोल्ड कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसमें हार्ट फेलियर की बात करें, एंजाइना की बात करें, तो इसमें ये देख लीजिएगा कि कोविड-19 में आने के बाद कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, और जो मॉर्टलिटी 1-2% है उसमें 70 to 80% उन लोगों की डेथ हुई है जिन्होंने अपना ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने अपने हार्ट फेलियर का ख्याल नहीं रखा, जिन्होंने अपने एंजाइना का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, तो इसके लिए ये लाजमी तौर पर यह है कि इस पीरियड के अंदर अपनी तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखें। लोग ये कहते हैं कि जी एक दफ़ा मैंने थोड़ी सी कलेजी खा ली या मैंने चिकनाई खा ली तो क्या होगा। तो आप याद रखें कि अगर आपने पूरे साल परहेज किया है तो उनको मैं मिसाल ये देता हूँ कि आप ये समझ लें कि ये ज़मीन खुश्क है, यानी कि ज़मीन को पानी नहीं मिल रहा 1 साल तक, और अगर उस 1 साल के बाद अगर जब पानी डालते हैं तो वो ज़मीन तेज़ी के साथ पानी को जज़्ब करती है। इसी तरीके से अगर आप एहतियात कर रहे हैं
और वो एहतियात छोड़ दें तो जो कुछ भी आप खाएंगे वो बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगा, कॉम्प्लिकेशन कम। देखिए, एतदाल में कोई चीज़ चखनी एक अलग चीज़ है, खाना एक अलग चीज़ है, और लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठूसना एक अलग चीज़ है। हलक तक ठूस लेना, अगर आप चखते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोई मसला नहीं है, खाते भी है तो ठीक है, लेकिन जब ठूसते हैं तो उसमें यू शुड बी रेडी कि आपको कॉम्प्लिकेशन होनी ही होनी है। सदफ ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम सिर्फ कोविड-19 से नहीं डर रहे, बल्कि हमें और कॉम्प्लिकेशन भी होने के बीमारियों के चांसेस हैं, जैसे कि मलेरिया होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा, और जो बारिश के बाद हमारे शहर का हशर हुआ है, और जिस जगह पे हम जहाँ जो भी रह रहा है, चाहे वो डिफेंस में रह रहा हो, चाहे वो लालूखेत में रह रहा हो, चाहे नॉर्थ काशी में रह रहा हो, सब जगह पे गटर माशाल्लाह से बाहर दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जो भी इन्फेक्शन डिजीज होंगी उसका जो बस्ट आउट होगा, आप उसके लिए रेडी हों। तो बात यह है कि इसमें सदर ने बहुत अच्छी बात की कि आप हर चीज़ को कंट्रोल में रखें। बच्चों को आप जानवर लेके जा रहे हैं तो भाई बच्चे घुमाएं फिराएं कुछ भी करें, मगर उनकी अपनी हाइजीन का आप क्या ख्याल कर रहे हैं। उनको बच्चे घूम रहे हैं बगैर मास्क से घूम रहे हैं, जो तमाम SOPs हैं उन SOPs की धज्जियां हमने बखेर दी। हम हर काम गलत कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें बचाएगा। अल्लाह मियाँ उस कौम की हालत उस वक्त अब तब्दील नहीं करता जब तक कि हम खुद करना न चाहें। और मैं वीडियो अपॉलॉजी, कोई इसको बुरा ना समझे, हम एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। कौम का डायरेक्शन होता है, हम कौम नहीं है इसलिए हमारे को डायरेक्शन नहीं है। आप देखिए रोजमर्रा में क्या होता है कि आप रोड पर जा रहे हैं, उल्टा आदमी आएगा, उल्टे रोड पर आपसे आगे लड़ेगा। भाई मैं तो सीधा जा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे कहेगा जी आपको नजर नहीं आ रहा, भाई मैं तो सीधा जा रहा हूँ, अब उल्टा आ रहे हैं, तो मैं आ रहा हूँ तो क्या है, हमारे को डायरेक्शन नहीं है। तो हर मामले के अंदर एतदाल की जरूरत है। कार्डिक प्रॉब्लम अगर है तो हमारे पास लोग कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर जब मुझे अलामत होती है तो मैं खा लेता हूँ। भाई ब्लड प्रेशर जो है वो बगैर अलामत के है, उसमें जब अलामतें देना शुरू करता है इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। मैं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन की 4 बड़ी अलामतें हैं। वो जो लोग जो सुन रहे हैं उन 4 अलामत को देख लें। अगर वो अलामत हो रही है इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेटेड ब्लड प्रेशर हो गया है। नंबर 1, चलने में सांस फूलना या सीने में दर्द होना। नंबर 2, आंखों के सामने धुंधलापन या डिप्लोपिया 2 नजर आना। तीसरा यह है कि सुबह के वक्त में मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर आपकी सूजन आना, मतलब किडनी का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। चौथी बात यह है कि आप लेटते हैं तो खांसी हो रही है, मतलब हार्ट फेलियर शुरू हो गया है। ये 4 जो अलामत है अगर हैं किसी में ब्लड प्रेशर के साथ, तो समझ लीजिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अदरवाइज ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, और इस पे आपने एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हो गया है तो यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर लाइफ। इसी तरह कार्डिक डिजीज में ये है कि अगर आपको अंजाना या इसकी हार्ट डिजीज हो गई है, इससे आपकी जान नहीं छूटेगी। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। और ख़त्म करने के लिए जो कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसके लिए कोई सुनने को तैयार नहीं है। दिल की बीमारी कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका डॉक्टर साहब को पता होना चाहिए, सबको पता है, बल्कि आसान तरीका जिसमें कोई चीज़ खर्च नहीं होती, ना पैसे खर्च होते हैं ना कुछ और खर्च होता है, वो है वॉकिंग। मेरे पास जो मरीज आते हैं उनमें 99.99% लोग वॉक नहीं करते। वो कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। टीवी पे देखने की फुर्सत होती है, कुमकुम ड्रामा देखने की फुर्सत होती है, तमाम चीज़ें देखने की फुर्सत होती है, अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट निकालने की फुर्सत नहीं होती 24 घंटे में। और कहते हैं जी फिर साहब दिल की तकलीफ ठीक नहीं हो रही। तो ये लाइफ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कोविड हम आपके साथ साथ हैं। ये कहते हैं कि मर्रे पे 100 दौरे वाली बात हुई है इस दफ़ा। इसके ऊपर ऐसे पे ख्याल रखें, अदरवाइज अ बस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज अबाउट टू अकर आफ्टर ईद। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? ये नजर आएगा। यस, एब्सोल्युटली। ये तो वक्त भी बता देगा, अब दूर नहीं है। बिल्कुल दूर नहीं। जी जी, Dr. Mukhtar Bhutto, we have a question for you that
you are associated with governments and you have worked with them, so you are very well aware of the policies and all such kind of things. So can you tell us that what are the precautions that one can do at individual level for Eid ul Adha, like कुर्बानी का करनी है लोगों ने, तो अब जैसे कि बारिशें हो गई हैं तो सिचुएशन काफी खराब हो गई है ऑलरेडी। जो एक कॉन्सेप्ट है लोग प्रेफर करते हैं। हेलो, यस डॉक्टर भुट्टो, कैन यू हियर? मैं ख्याल भुट्टो साहब अगर ये सेट लगा लेना तो फिर शायद कोई उनको आवाज साफ आवाज बड़ी, आपकी आवाज कट के आ रही। जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सही आ रही है। मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? यस बिल्कुल। जी आपकी आवाज रिपीट करें अपना क्वेश्चन। मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन, प्लीज कैन यू रिपीट? अच्छा, मेरा ओके, ऑलराइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि ईद आ रही है, ईद उल अज़हा कुर्बानी करनी है, तो इस लिहाज से गवर्नमेंट को जो है वो क्या लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो कुर्बानी जो है वो अपने घर के बाहर करें, या फिर दे कैन अरेंज सम सेपरेट स्पेसिफिक प्लेसेस वेयर पीपल कैन गो एंड परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, कुर्बानी कर सकें वो जहाँ पर, और इंडिविजुअल लेवल पे क्या जो है वो इस लिहाज से तदाबीर करनी चाहिए? जी मिस रशिंदा, मैंने आपका सवाल सुन लिया, और अभी डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब जो बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली कि हम कौम नहीं हैं, हम एक हुजूम हैं, और हुजूम जो है ना वो कम ही कम अमल करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की बातों पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हमारे यहाँ जिनका काम होता है, आई डोंट नो कि एट द 11th आवर वो कहाँ चले जाते हैं। जैसे हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, या हमारे डीजी हेल्थ हैं, या हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट इन इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, उन लोगों को काम करने देना चाहिए। आई डोंट नो वेयर दे गो एक्चुअली। और अगर आप हर काम जो है वो अगर फ़ौज ने ही करना है, तो फिर बाकी लोग इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें क्यों लेते हैं, इतने बड़े बड़े मरात इस गरीब कौम के क्यों लेते हैं, इतने बड़े बड़े पर्क्स, इतने बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियों में वो क्यों घूमते हैं? उनको अपने हिस्से का लेजिटिमेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ईद उल अज़हा हमारे लिए एक बहुत मुतबर्रिक फेस्टिविटी है, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम सुन्नत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से उनका मोहब्बत और प्यार का एक वलवला अंगेज़ इवेंट है। इसको हमें उसी अंदाज से जो है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम करेंगे भी और कर भी रहे हैं। लेकिन हमें एहतियात का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आज मैं काबतुल्लाह शरीफ से इमाम साहब का खुतबा सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अगर ताउन है तो उस जगह पे ना आप आने दें किसी को, ना कोई वहां से जाए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कैन आप दोनों की आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है, ओके जी। तो मैं यही कह रहा था। सो बारिश के बाद आई थिंक देयर आर सम इश्यूज, सो डॉक्टर मुख्तार हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। कमिंग बैक टू डॉक्टर सदफ, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कैन यू शेयर एनी ईटिंग रिलेटेड टिप्स फॉर द पीपल, कि वो किस तरह से, जस्ट लाइक हमारे पास एक प्रैक्टिस है जो की जाती है कि गोश्त जो है वो स्टोर कर लिया जाता है फ्रीजर्स में, तो क्या एक स्पेसिफिक इसका टाइम पीरियड है कि किस हद तक लाइक हम उसको फ्रीजर कर सकते हैं, और किस देर तक जो है वो ठीक रह सकता है, प्रिजर्व रह सकता है, और लाइक क्या इसके तरीका है?
जो फॉलो करें तो ये हेल्थ के लिए हमारे लिए ठीक होगा। बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम ईद कुर्बान जब आती है, जब हम गोश्त वगैरह की तकसीम का, तो हम लोग जो है उसका एक बहुत सारा हिस्सा जो है बहुत से लोग फ्रीज कर लेते हैं। इवन के बहुत सारे घरों में तो ईद उल अजहा के ज़माने में बाकायदा डीप फ्रीज़र की जो है ख़रीदारी होती है गोश्त को फ्रीज करने के लिए। लेकिन देखिए कुर्बानी का असल मकसद जो होता है वो है जो ऐसे मुस्तहिक अफराद तक गोश्त की रसाई को मुमकिन बनाना जो पूरे साल इस दिन के इंतजार में होते हैं कि उस दिन उन तक जो है गोश्त की रसाई मुमकिन हो सकेगी और वो साल के एक दिन वो लोग गोश्त को खा सकेंगे। तो हमें जो है ईद उल अजहा के दिन जो जिनके हिस्से हैं, जो उसके असल हकदार मुस्तहिक लोग हैं, उन तक जो है गोश्त को पहुंचाकर फिर जो हमारा हिस्सा बनता है उसको हम जो है फ्रीज करके जो है उसको तकरीबन 20 से 25 दिन तक उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये भी जो है डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ जो है आजकल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम हुआ है कि लोगों के घरों में पूरे दिन तक लाइट नहीं होती है, और जब पूरे दिन आपका फ्रीजर बन रहेगा, आपके जो है फ्रिज बन रहेंगे, तो फिर उसमें जो है आपका जो मीट रखा हुआ है, जो उसमें आपकी फ्रीजिंग पॉइंट पर जो चीजें आपकी मौजूद है, वो सारी मेल्ट हो जाती हैं। वो सारी जो है एक मेल्टिंग टेम्परेचर पर वो आ जाती हैं, और फिर उस दौरान उनके अंदर मुख्तलिफ इक़साम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और की जो है, और फिर डिफरेंट बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म की भी जो है ग्रोथ हो जाती है। और फिर जब लाइट आती है उसके बाद फिर वो दोबारा से जो है फ्रीज हो जाते हैं। तो वो सब चीजें उसमें जो है, और फिर बार जब ये सिलसिला चलता रहता है कि आपने उसको जो है डेली वो मेल्ट हो रहा है, फिर वो डेली फ्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से गोश्त का जो है वो कहना चाहिए कि उसकी एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसकी जो है खराब होने की जो है वो शरह बढ़ जाती है। तो फिर हमें आजकल के जो हमारे पास एक हमारे सिटी का या हमारे मुल्क का जो सिनेरियो है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मैं बात करी, तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको जितनी जल्दी हो सके उस गोश्त को हम इस्तेमाल करके ख़त्म कर लें। लेकिन अब इसमें हमें इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उस गोश्त को एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में जो है बनाकर ख़त्म कर लें कि भाई हमें इस गोश्त को ख़राब होने से बचाना है। हम अपना हिस्सा उतना ही रखें जितना हमें ज़रूरत है, और जितना हम उसको जो है एक ताज़ा हालत में कि हम जो है मैक्सिमम उसकी जो है ताजगी बरकरार रखकर उसको हम जो है इस्तेमाल कर लें। और फिर जहाँ तक गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल की आपने बात की कि जो नॉर्मल अफराद होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, उनके साथ बिलअमूम और बिलखुसूस ऐसे अफराद जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के मरीज होते हैं, यानी कि दिल के अमराज में मुब्तला लोग, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, ज़ायबिटीज के मरीज होते हैं, ओबेसिटी के हामिल अफराद होते हैं, या फिर ऐसे अफराद जो अभी भी किसी बीमारी से सेहतियाब हुए, उन अफराद के लिए जो है ज़्यादा रेड मीट का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो लेकिन ये कि ईद उल अज़हा है, कुर्बानी वाली ईद है, गोश्त वाली ईद है, गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल न करें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ उसके साथ सैलेड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सैलेड्स का इस्तेमाल करें जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ताकि हमारी बॉडी में सिर्फ बस जो है प्रोटीन ही ना जाए, प्रोटीन के साथ साथ और भी जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं, वो सब भी जो है हमें एक बैलेंस मिकदार में मिलती रहे। और फिर जब हम ईद वाले दिन जब हम बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर मुख्तलिफ इक़साम की जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़, जैसे कि अभी डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब ने भी बताया कि जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो हमारे पास डायरिया के मरीज सामने आ जाते हैं, वॉमिटिंग के, इस हद तक जो है वो लोग गोश्त का इस्तेमाल, जैसे कि अभी सर ने कहा कि ठूस कर जब गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आप जो है ईद वाले दिन, क्योंकि देखिए हर साल हम जो है न्यूज में ये बात सुन रहे होते हैं कि जो है
फूड पॉइजन की वजह से या बहुत ज्यादा गोश्त इस्तेमाल की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से बहुत सारे लोग अस्पताल तक में जो है दाखिल होना पड़ जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा वो मीट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं कि आपका खाना जो है डाइजेस्ट नहीं होता और फिर उसके बाद आप अपना सेकंड मील ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको जो है बहुत ज्यादा जो है वो एक हैवीनेस का भी ऐसा वो की भी जो है फीलिंग आ जाती है और फिर आपके जो है मैदे पर बहुत ज्यादा जोर पड़ जाता है और फिर आप जो है मुख्तलिफ इक़साम के जो है डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इन सब का जो है शिकार हो जाते हैं। और इसमें एक चीज ये भी मैं जो है इम्पोर्टेंट जो है ये बात जो है बोलती चलूं कि जो है आपको जो है खासकर ईद के वाले दिन जब आप गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करें तो आपको पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम आगे जाकर जो है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल जो है ना ईद पर लाजमी होता है कि लोगों के घर में फ्रिज में पानी की बॉटल्स नहीं होती है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स रखी हुई होती है। छोटे बच्चे बड़े सब हर खाने के साथ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो इस हद तक जो है खतरनाक साबित हो सकता है कि वो अभी हम के जो है आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन ये कि पानी का हमें जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, अच्छा हमारे पास यहाँ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि इज देयर एनी चांस ऑफ स्प्रेडिंग कोविड-19 थ्रू एनिमल्स? तो आप दोनों में से जो भी इस चीज का जवाब देना चाहे कि एनिमल्स के थ्रू क्या कोविड-19 ट्रांसफर हो सकता है? देखिए, आप बोल रही है, मैं बोलूं? मतलब बात ये है कि जहां पे हुजूम है, एनिमल टू एनिमल नहीं है, एनिमल टू मैन भी नहीं है, लेकिन मैन टू मैन है। बात यह है कि जानवर तो बेचारा जानवर है, उसके साथ हम जो रवैया रख रहे हैं वो है असल चीज जो कि आपको कोविड-19 कहेगी। अभी तक जो प्रूफ किया गया है वो ये हुआ कि बैट्स वगैरह से वो आपको वायरस मिला था, लेकिन जानवर से डायरेक्टली आपको कोई वायरस नहीं मिल रहा है। लेकिन आप उसके साथ जो लोग मौजूद हो रहे हैं, जो लोग हजूम कर रहे हैं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो आप कोविड-19 इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ले रहे हैं। आप मतलब जानवर से उछाल के ऊपर नहीं ले रहे, आप उसकी वजह उसको आपने ख्याल करना है, उसकी एसओपी का ख्याल रखना है। दैट इज द मेन थिंग। और बहुत सिंपल बात है कोविड-19 से बचने के लिए, यू जस्ट नीड एसओपी में डिस्टेंसिंग चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं हो रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को भूल मत जाएं, उनको कॉन्टैक्ट में रखें, फोन रखें, मैसेज करें, लेकिन उनकी साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की लाजमी है। ठीक है, तो जानवर से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आपको एक दूसरे से लग जाएगा। अच्छा, इसमें मैं जो है एक चीज और भी ऐड कर दूं कि देखिए हम लोग जो है ना अक्सर औकात क्या ज्यादातर ईद उल अजहा के जमाने में जो है गोश्त की मुख्तलिफ इक़साम की जब डिशेस बना रहे होते हैं। इवन हम जब बारबेक्यू, हर घर में जो है ईद उल अजहा पे बारबेक्यू होना मस्ट होता है, तो उसमें हमें इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि जो गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से हाई टेम्परेचर पर पका कर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोविड-19 का तो किसी गोश्त में शामिल होने का सवाल अभी तक नहीं है। अभी तक इस पर जो है कोई भी ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि हम जो है मीट के जरिए या फिर किसी भी जो है फूड के जरिए कि किसी को जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ। लेकिन मुख्तलिफ इक़साम के जो है पैरासाइट्स हैं, मुख्तलिफ इक़साम के जो है ऐसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीट में मौजूद हो सकते हैं। और जब हम अच्छी तरीके से कुक किया हुआ गोश्त इस्तेमाल नहीं करते तो फिर मुख्तलिफ इक़साम की जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। या फिर हम जब बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो उस टाइम जब हम बहुत ज्यादा जला हुआ गोश्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो गोश्त को इस हद तक जला देते हैं कि वो जो है वो फिर आगे जाकर आपको जो है कैंसर तक की बीमारी में मुब्तला कर सकता है। तो गोश्त को एक जो मुतदल टेम्परेचर होता है कि हाई टेम्परेचर कि वो ना ज्यादा कच्चा हो और ना बहुत ज्यादा इस हद तक भुना हुआ या फिर जला हुआ गोश्त हो कि जो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। तो उसको एक अच्छे टेम्परेचर पर पकाकर इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी इस तरह का अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है तो वो फिर हमें नुकसान नहीं पहुंचाए। यानी कि आप उसे फुल कुक करें, हाफ कुक ना हो। और देखिए कहने में रेड मीट कहना एक लिमिट तक है, जरूरी है,
कि उसमें आपको फैट मिलती है, प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलती है, कैल्शियम मिलती है, आयरन मिलता है, लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कैंसर भी करता है, वो डायबिटीज़ भी करता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ावा भी देता है, वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज को बढ़ावा भी देता है। तो इसमें ये तमाम चीज़ ये है कि वो फिर में बात आती है, आपने चखना है और ज़्यादा खाना है, ठूसना नहीं है बस। चल ठीक है। और जो मेरा एक और आपसे बड़ा, हमारे पास जो सबसे पहले ईद जब शुरू होती है तो नमाज ईद अदा की जाती है, तो इसके लिए अगर आप कुछ SOPs वगैरह बता दें कि मस्जिद में जाकर नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है सबने, तो लाइक क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो जिनको फॉलो करते हुए वो COVID-19 को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं इस डिजीज। देखिए जो सॉरी आप बोल रहे जी, मैं इसमें जो है बस यही कहूंगी कि जिस तरीके से हमें हर जगह पर हम जो एक बेसिक SOPs हैं या जो बेसिक इसकी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम इख्तियार कर रहे हैं, वही हमें जो है अपने मसाजिद में भी अप्लाई करना है कि हम जब नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ ईद उल अज़हा की नहीं, हम जो पांचों टाइम हम जब नमाज पढ़ने अपने मसाजिद की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पर भी हमें उन तमाम SOPs को फॉलो करना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ख्याल करना है, हर शख्स को जो है जो एक मेंटेन फासला है उस फासले से जो है आपको खड़ा होना है, और फिर उसके साथ साथ आपको मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एसिम्प्टोमेटिक पर्सन्स भी हमारे पास सामने इसमें आ रहे हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि इनमें से जो है कौन सा शख्स हमारे पास जो है COVID-19 का इन्फेक्शन लेकर हमारे पास मौजूद है। और फिर इसके साथ साथ जो आपकी पर्सनल हाइजीन है कि वहां पर आप किसी से हाथ मिलाने से गुरेज करें, और फिर अपने साथ जो है अगर आपको जो है नज़ला जुकाम खांसी है तो कोशिश करें कि आप जो है मस्जिद नहीं जाएं, आप घर पर नमाज पढ़ लें ताकि आपके साथ साथ या आपका इन्फेक्शन बाकी दूसरे लोगों को जो है मुतासिर नहीं करे। और फिर ये कि वहां पर देखिए बहुत सारी जगहों पर भी जो है मैंने देखा है कि अभी जो है जैसे थर्मल स्कैनर नस्ब किए गए, तो अब जहाँ जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं तो उनमें ना ही बुखार होता है ना ही उनको जो है नज़ला खांसी होता है, कोई भी उनके पास विजिबली साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, तो वो थर्मल स्कैनर में भी उनकी आइडेंटिफिकेशन या उनकी स्कैनिंग नहीं हो पाती है। और फिर ऐसे लोग मजमे में दाखिल हो जाते हैं या जहाँ पर हुजूम होता है, मॉल में, मसाजिद में, हर जगह ऐसे लोग फिर एंटर हो सकते हैं। तो हर शख्स को जो है इंडिविजुअली, हर शख्स को इनफिरादी तौर पर अपना ख्याल खुद रखना है, और अपने ख्याल रखने के साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके भी ख्याल रखना एक हमारा इखलाकी फर्ज है कि अगर हम में से कोई शख्स बीमार है और हम उस चीज से जो है इल्म है कि हमें मालूम है कि हमें नज़ला खांसी बुखार है, हमने टेस्ट नहीं करवाए बट मैं जो है COVID-19 का मरीज हो सकता हूँ, तो हमें जो है खुद से ही अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, अपने आप को जो है बाहर निकलने से परहेज करना है, इवन अपने फैमिली मेंबर से भी उस दौरान मिलना जुलना नहीं चाहिए। तो हमें ईद उल अज़हा में भी जो है नमाज की अदायगी के दौरान और आम दिनों में भी बाहर निकलते हुए तमाम इन देखिए मैं कहती हूँ कि ये जो हमारे पास SOPs है ना, इनको अब हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पास मास्क है, पर्सनल हाइजीन है और ये कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों चीजें हमें सिर्फ COVID-19 के इन्फेक्शन से नहीं, बहुत सारे हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये तीनों चीजें महफूज रख सकते हैं। क्योंकि देखिए हम जब भीड़ वाली जगहों पर जा रहे होते हैं या लंबी कतारों में लग रहे होते हैं, तो वहां पर COVID-19 के अलावा भी बहुत सारी जो है दीगर सांस के अमराज में मुब्तला लोग होते हैं कि जैसे कोई अगर TB का मरीज वहां पर मौजूद है तो उसके मुंह से निकलने वाले जर्म्स भी आपको बीमार कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज का जो है पर्सन वहां पर मौजूद हो सकता है जो आपको जो है बीमार कर सकता है। तो अगर हम ऐसी जगहों पर जाते हुए लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, और फिर जब ऐसी जगहों से हम जब वापस आ रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। और जो हमारे पास एक बेसिक चीज जो हमें बचपन से सिखाई
जाती है। अब तो बहुत सारे लोग शायद इस चीज को भूल गए थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब वो चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई कि जब भी हम खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करें, क्योंकि जो हमारे पोर्टल ऑफ एंट्रीज कोविड-19 के हवाले से है कि हमारी आईज, नाक और हमारा मुंह, ये सिर्फ कोविड-19 के लिए पोर्टल ऑफ एंट्रीज नहीं है। बहुत सारी ऐसी अदर इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। तमाम हमारे पास जितने भी फीकर ओरल रूट के इन्फेक्शंस होते हैं, जितनी भी हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज की बीमारियां होती हैं, वो सब इन्हीं पोर्टल ऑफ एंट्रीज के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होती है। तो हम जब इन बेसिक चीजों का हर वक्त ख्याल रखेंगे और कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद भी जब कोविड-19 हमारे पास से बिल्कुल खत्म हो जाएगा या जब हम इसके यूज हो जाएंगे, तो उसके बाद भी हमें अब इन तमाम जो हमारी एक बेसिक जो एक हम चीजें हमने अपने पास बना ली है कि हमें इन चीजों पर लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, तो आगे किसी भी बीमारी से महफूज रहने के लिए या अभी भी जो हमारे पास मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीजेस मौजूद हैं, उनसे महफूज रहने के लिए हमें इन तमाम चीजों पर अमल करना चाहिए। ऑल राइट, डॉक्टर अब्दुल रशीद, आप क्या रिमार्क्स हैं इस क्वेश्चन पे? देखें, एसओपी के मुतालिक तो नमाज के लिए बहुत क्लियर वादे तौर पे उलमा कराम ने भी कहा है, और उस पर अमल आप देखें कि सऊदी अरब में हो रहा है। ठीक है, आप दोनों एक्सट्रीम ऑफ एज वो मस्जिद नहीं जाएं। 5 से 50 साल तक की उम्र के लोग, मतलब बच्चे 15 साल से कम बच्चे समझ लें, और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग मसाजिद नहीं जाएं। बेहतर ये है कि आप जो जमात है वो अपने घर में करें, और अपने घर में भी आप एसपीपी का ख्याल रखें। अभी आप देखिए कि इस वक्त मस्जिद खाने काबा में जो तवाफ़ हो रहा है, जो नमाज़ें हो रही हैं, उसमें उन्होंने 100% एसपीपी का ख्याल किया हुआ है। यानी कि अब उनको जो तवाफ़ है उसके लिए लाइनें लगा दी गई हैं, नमाज पढ़ने की जगहों पे निशान लगा दिए गए हैं। आप उसके अलावा आप नमाज नहीं पढ़ सकते या तवाफ़ नहीं कर सकते। देखिए, जिन जिन ममालिक ने इस कोविड-19 के ऊपर काबू पाया है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग को दूर रखा, उस पर अमल किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो उन्होंने जिसको मजाक उड़ाया वहाँ पे कोविड-19 डिफर किया। तो हमारा ये है कि अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। लोगों को अंदाज़ा हुआ है मगर अभी भी नहीं मान रहे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा जो मसला है ना, हमारा जो मिजाज है, इस हुजूम का मिजाज वो है जिद का। आप जिस चीज़ को मना करेंगे वो उसने वो करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी कर ले। आप देखिए, आपके जितने भी क्या नाम है नाले बंद हुए हैं, वो किसने बंद किए? फरिश्तों ने नहीं किए, आपने, मैंने किए। आपके घर के बाहर हर घर में आपको जब पता है कि भाई आपकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो काम नहीं कर रही, हर मोहल्ले में कचरा उठाने वाला बंदा आता है। उसको आप क्या है जो है 150 रुपये 200 रुपये जो भी देते हैं वो कचरा उठा लेगा, आप उसको नहीं देंगे। आपने कचरा उठाया, जाके नाले में डाल दिया, और जब नाला बंद होता है तो आप लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर 150 रुपये कचरे वाले को नहीं देते। इसी तरह जब आप गाड़ी मिजाज आप देखिए, क्या उल्टा आ रहा है, उल्टा आने के बाद रोड को ब्लॉक कर दिया, 2 मिनट बचाने के लिए 2 घंटे खड़े रहेंगे, मगर ये नहीं होगा कि आप सही रास्ते से आ जाए। तो हम लोगों का मिजाज जो है वो बागियाना है, हम लोगों जो है वो ये। इसलिए अगर आप एसओपीज के ऊपर डे 1 से अमल करते तो पाकिस्तान में कोविड फैलता ही नहीं। हमने एसओपी पर डे 1 से अमल नहीं किया, और हमें अभी भी ये डर है कि हम जो है इस जिद में कि नहीं जी मैं तो उसके बगैर मुसलमान नहीं हूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हम उनसे बढ़ के नहीं है कि जिस जगह वबाई अमराज हो ना आप वहाँ जाएं और ना से वहाँ से बाहर जाएं। हम अपने प्यारे नबी की उस बात पर अमल नहीं कर रहे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मुझे डर है कि अब ईद के बाद 1 हफ्ते के बाद क्या सूरत हाल होगी, अस्पतालों में क्या हशर होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस किस्म के हम एसओपी के ऊपर अमल कर रहे हैं। बच्चे घूम रहे हैं, एक गाय के साथ 50 बच्चे घूम रहे हैं, किसी के मुंह पे ढाटा नहीं है, ना किसी के मुंह पे मास्क है, ना उसका ख्याल कर रहे हैं।
उसके साथ सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। मैं क्या कहूँ इस कौम के मतलब, आप क्या कह सकते हैं? वही बात आती है कि मैं इसे कौम नहीं कहता, हुजूम कहता हूँ। ठीक है, तो आप नमाज घर में पढ़ें, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है। पहले आप 3 क्या नाम है एक्स्ट्रा तकबीर करते हैं। इसमें जो ईदैन की नमाज है, पहले में 7 और दूसरी रकअत में 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाएंगी। बाकी नमाज वही है। आपको अल्लाह ताला जानता है कि आपकी नीयत क्या है। वो आपके झुकने को, उठने बैठने को नहीं देखता, वो आपकी नीयतों को देखता है। और जब SOP के ऊपर अमल करने के लिए कहा गया है, उस पर अमल करने का मतलब ये है कि आप दूसरों को इस डेडली बीमारी से बचा रहे हैं। आप बचा रहे हैं, आप एक जहाद कर रहे हैं, तो आप उस जहाद में अमल में कीजिए ताकि लोग इससे बचें। लेकिन मुझे डर है कि लोगों ने SOP अमल नहीं किया है। आप देखिए कि मैं आज अपनी सदर में क्लिनिक पे गया, मेरी क्लिनिक के एंड सामने किसी साहब ने, जिनकी आज ईद थी, उन्होंने कुर्बानी की और पूरा ऑफर जो है मैं क्लिनिक के सामने डाल दिया। अब मैं क्या कहूँ कि मैं अपने क्लिनिक में किस तरह दाखिल हूँ, और वहां पे मक्खियां गंद पड़ी हुई। भाई आपने कुर्बानी की है तो उठा के फेंकवा भी दें, जबकि आपको SOP क्या है कि आप गली मोहल्लों में कुर्बानी नहीं करेंगे। मगर मुझे यकीन है, आप देख लीजिएगा, हर घर के सामने कुर्बानी हो रही होगी, हर घर के सामने गंदगी पड़ी होगी, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई सुनेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एक जिद्दी हुजूम है जो हर बात को उल्टा लेते हैं, और जो अमल करते हैं वो बेहतर है। इस बारे में एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आ रहा था कि जस्ट लाइक जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में ऑलरेडी जो हैं वो कारपेट्स या जानेमाज बिछे होते हैं, तो क्या इट्स बेटर कि हम लोग उन्हीं पर नमाज अदा कर दें या फिर घर से अपने साथ जो है वो लेकर जाएं? क्या इससे कोई पेचीदगी है या फिर हम लोग वहाँ पर ही नमाज अदा कर सकते हैं जो मस्जिद में कारपेट वगैरह, या फिर ये बेहतर है कि हम अपने घर से लेकर जाएं? ये जो कारपेट हैं पिछली ईद उल फितर पे हटा दिए गए थे, जब से स्ट्रिक्टली किसी भी मस्जिद में कारपेट नहीं है, क्योंकि उसमें हजारों लाखों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। जब सजदा करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप करना ही चाहते हैं तो अपने घर से चादर या अपने घर से अपना जानवर लेके जाएं और उसको किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जब वो अब झुकेगा, अगर उसने मास्क नहीं लगाया हुआ, जब वो पड़ेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो वो तमाम की तमाम उस कारपेट पर जाएगी और उसमें आप सांस लेंगे तो आपका कांटेक्ट बहुत करीब होगा। तो आप पूरे चांसेस हैं जरासीम काबू करने के लिए, लेने के लिए और वायरस को लेने के लिए। तो वहाँ पे कारपेट हटा दिए गए और हर मस्जिद में लाजमी कहा गया था। मुझे तो नहीं मालूम कि मैं जब से हुआ मैं मस्जिद नहीं गया हूँ, मैं मस्जिद नहीं गया हूँ, क्योंकि जब तक कि कोविड ख़त्म नहीं होगा मैंने मस्जिद नहीं जाना जब तक कि उसकी इजाज़त ना मिले। मैं जिद्दी नहीं इस मामले में, मैं जानता हूँ कि क्या नाम है, मैं जिद्दी इस मामले में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कोई जमा पढ़ने नहीं गया, कोई जमात पढ़ने नहीं गया, मैं घर में जमात करता हूँ, घर में नमाज पढ़ता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं दूसरों से ले सकता हूँ, या मैं अगर कैरियर हूँ तो मैं दूसरों को दे सकता हूँ, कि मेरा अपना फर्ज बनता है एज ए शहरी कि मैं ना बीमार हूँ और ना किसी दूसरे को बीमारी दूँ। यकीन तौर के बाद कारपेट नहीं हो चाहिए, अपना चादर ले जाए, अपना कारपेट ले जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कमेंट बॉक्स में जो है एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है कि जस्ट लाइक अब कुर्बानी होगी तो ज़्यादातर कसाई वगैरह जो हैं अगर उनको SOP फॉलो करने का कहते हैं कि आप मास्क या ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, तो उनका यही आर्ग्यूमेंट होता है कि ये मुश्किल होगा, इससे हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या ये सेफ है कि वो बिना ग्लव्स पहने जो है वो कुर्बानी का गोश्त तैयार कर दें? तो इससे क्या हमारी हेल्थ पर कोई इफेक्ट होगा या फिर इट्स फाइन कि वो जिस तरह उनकी मर्जी हो वो कर सकें? तो इस पर देखिए आप लोगों देखिए बात ये, जो कसाई आ रहा है, क्या उसने अपना कोविड टेस्ट करवाया है? क्या उसने अपना IgG IgM टेस्ट करवाया है? आपको तो नहीं मालूम। अगर वो मास्क नहीं पहन रहा तो जो लोग कुर्बानी करवा रहे हैं, जिस घर में कुर्बानी हो रही, तो वो उस बात पे तैयार रहें कि उनको कोविड लग सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हों। ठीक है, अगर आप क्या नाम है, मैं ये नहीं कर सकता, क्या सर्दियों में हम कपड़े नहीं पहनते? क्या सर्दियों में हम गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करते?
ये तो बहाना है कि मैं नहीं कर सकता। जब आप सर्दियों में ठंडे पानी से कोई कसाई नहाएगा, वो भी गर्म पानी इस्तेमाल करता है। तो जब कोविड में आपको एसओपी है कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, तो इसमें दो राय नहीं है। ही हैज टू एंड यू हैव टू। अगर आप नहीं करेंगे तो आप तैयार रखिए कि अल्लाह माफ करे, पिछली क्या नाम है ईद उल फितर के बाद आपको अंदाजा होगा कि अस्पतालों में क्या हाल हुआ था और लोग रोड पर मरे। रोड जो मरीज जो हैं वो एम्बुलेंस में मरे, मरीज जो है अपनी कारों में मरे कि जगह नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, कोई चीजें नहीं मिल रही थी। तो आप अगर नहीं मानेंगे तो आप भुगतेंगे। बाकी मैं तो बात कहता हूँ, अल्लाह माफ करे, मैं वो नहीं हूँ कि मेरे रसूल ने भी पूरी दुनिया को मुसलमान नहीं किया कि अल्लाह ताला की हिकमत नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसको मैं हिदायत दूंगा वो हिदायत मानेगा, जो हिदायत नहीं लेना चाहता अल्लाह ताला ने उसको भी छोड़ दिया। तो ये आप पर मुझ पर डिपेंड करता है कि हम कोविड को लेना चाहते हैं या कोविड से हम बचना चाहते हैं। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें? जी कुछ कहना चाहें? इस बात में भी आप अपने रिमार्क्स दे दीजिएगा, और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि उस पर दोबारा से एक डिटेल्ड और प्रिसाइज हम लोग जो है वो गाइडलाइन दे दें अपने व्यूअर्स को कि जैसे लाइक कोल्ड ड्रिंक पे हमारी बात हो रही थी कि बारबेक्यू तो हर घर में ही होता है, और इसके तो एक स्पेशल पार्टी बारबेक्यू पार्टी मस्ट होती है हर घर में। तो इसके लिहाज से जैसे और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल मस्ट होती है। तो इस पर अगर आप थोड़ा अवेयरनेस दे दें हमारे व्यूवर्स को कि ये कितनी डेंजरस हो सकती है कोल्ड ड्रिंक आपकी हेल्थ के लिए, और वो भी जब इस टाइम पर जब हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर वर्क करना चाहिए तो वो है हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी हमारा असल वेपन बनता है कोविड-19 से बचाने के लिए। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, अगर आपको कैरियर भी हैं, और यहाँ पे अगर आपको कोविड-19 हो भी गया, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी इम्यूनिटी, वो आपको बताती है कि आप अब कितने पानी में आप कितना इससे फाइट कर सकते हैं और कितना आप जी सकते हैं, इससे रिकवरी के चांसेस हैं या नहीं है। तो इस बात पे हमें आई थिंक जितनी भी ज़्यादा अवेयरनेस हम दे सकें वो कम है कि कोल्ड ड्रिंक इस दफ़ा कैंसिल कर दें अपनी बारबेक्यू पार्टीज में से, क्योंकि ये ईद वो नहीं है जो हम लोग ट्रेडिशनली मनाते आए हैं। इंशाल्लाह जब कोविड-19 से हमारे अल्लाह ने चाहा तो इसकी वैक्सीनेशन आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वी कैन कैरी ऑन। तो इस पे आप अपने रिमार्क्स देते हैं। और जो पहले कसाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्योंकि एक मेन एलिमेंट है ईद की कुर्बानी, कोई भी अपना खुद नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिसका काम है उसी को ही आता है। तो इस बात पे आप जरा गाइड कर दें। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक पहले वाले सवाल का ताल्लुक है, वहाँ पर जैसे डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब ने कहा कि वो बिल्कुल सही बात है कि जो कसाई हैं उनको भी जो है जो प्रॉपर एसओपीज हैं हमारे पास के, उनकी भी जो है हैंड वॉशिंग है, ग्लव, मास्क है, उन सब का उनको जो है ख्याल रखना है, ताकि क्योंकि देखें कसाई जो है ना इस चीज़ के समझने के एज अ ट्रांसमीटर जो है काम कर सकते हैं कि वो एक घर से दूसरे घर में जो है कोविड-19 की बीमारी को फैला सकते हैं। कि अगर एक घर में जो है वो अगर कुर्बानी के लिए गए हैं तो वहां पर उनके पास ऐसा कोई, अगर वो कसाई जो है कोविड-19 उसको नहीं है, लेकिन अगर उस घर के अफराद में से किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन है और वो एसिम्प्टोमेटिक है और वहां पर जो है वो पानी का गिलास इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उस शख्स के साथ जो है उसने सोशल डिस्टेंसिंग को या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया हुआ, तो उस फर्द से जो है उसको कोविड-19 ट्रांसफर हो सकता है। और फिर जब वो उस घर से दूसरे घर में जाएगा तो वो उस घर में जाकर जो है वो कोविड-19 के इन्फेक्शन को फैला सकता है। तो लिहाजा जो हमारे पास कसाई हजरात हैं, ये जो समझ लें एज अ वेक्टर जो है कोविड-19 के लिए वर्क कर सकते हैं कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक फैलाने का बाइस बन रहे हैं। तो उनको जो है प्रॉपर जो एसओपीज हैं उनको बेसिक जो है फॉलो करना चाहिए कि जो है ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और अपनी खुद की जो है पर्सनल हाइजीन का जो है ख्याल रखें कि जब कुर्बानी से जिस जगह से जो है कुर्बानी से फारिग हो जाए तो वहाँ से निकलने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को जो है साबुन और पानी से वॉश करें, ताकि अगर उनको कहीं से भी कोई इन्फेक्शन उनके हाथों पर लगाओ तो वो जो है क्लीन हो जाए और वो दूसरी जगह उस चीज़ को लेकर नहीं जाए और ना वो खुद उस चीज़ से इन्फेक्टेड हो सके।
तो बाकी सब लोगों के साथ साथ कसाईयों को भी अपनी सफाई का ख्याल करना है कि वो भी जो है एंड ऑफ द ईद उल अज़हा कोविड-19 का जो है शिकार ना हो। और जहां तक फिर हम जो सेकंड सवाल की बात है कि जो है कोल्ड ड्रिंक के हवाले से, देखें कोल्ड ड्रिंक जो है सिर्फ कोविड-19 के दिनों में जो है बंद नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 को कोल्ड ड्रिंक को हमें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में जो है एक क्रॉस का दर्जा दे देना चाहिए कि वो को हमें अपनी जिंदगी से बिल्कुल बैन कर दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें। क्योंकि देखें कोल्ड ड्रिंक जो होती है, हम किसी भी किस्म की जो है ब्रांड की जो है कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो है हमें सबसे बेसिक चीज ये होती है कि उससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, दिल के अमराज में मुब्तला लोग होते हैं, उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर इसके साथ साथ जो आजकल हमारे छोटे बच्चे हैं, आजकल देखें छोटे छोटे बच्चे को जो है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी हड्डियां इस हद तक वीक हो रही हैं कि अब उनको जो है अपनी हड्डियों के इलाज के लिए जो है बाकायदा उनका जो है ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर इस हद तक उनकी हड्डियां भुरभुरी हो चुकी हैं कि अब उनका इलाज पॉसिबल नहीं, और फिर उनको उसी माजूरी के साथ उन्हीं हड्डियों के साथ जो है अब जो है लाइफ टाइम सर्वाइव करना है। तो हमें जो है जो छोटे बच्चों को जो है बहुत ही ज्यादा इस चीज की तलकीन करनी चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करें और उसकी जगह जो है सादे पानी का इस्तेमाल करें। और इस चीज के लिए हमें जो हमारे पास पेरेंट्स हैं, जो घर के बड़े होते हैं, उनको इस चीज में जो है मेक श्योर करना चाहिए कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल घर में बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि देखें हमें जो है ना, अब हम कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं तो कोविड-19 के सिनेरियो में हमें जहां बहुत सारे जो है चीजों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों का जो है तकलीफों का सामना करना पड़ा, वहां पर हमें बहुत ज्यादा जो है सबक भी हासिल हुआ, बहुत ज्यादा हमें जो है एक लर्निंग पीरियड हमें मिला है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें इन्वॉल्व थी कि जिससे जो है कोविड-19 से जो लोग मुतासिर हुए हैं वो लोग कौन थे, उनके पास ऐसी कौन कौन सी बीमारियां थी, उनका इम्यून सिस्टम कैसा था, ताकि अब हमें चाहिए कि हम उन सब चीजों से सबक सीखें, उन सब चीजों से हम देखें कि वो कौन से ऐसे अफराद थे कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, और उनका इम्यून सिस्टम क्यों वीक था, कि अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे तो वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज क्यों थे, अगर उनके लंग्स कमजोर थे कि कोविड-19 के वायरस ने उनके लंग्स पर डायरेक्ट अटैक किया और फिर वो आगे जाकर जो है आरडीएस की जो है बीमारी या किसी ऐसे जो है संगीन बीमारी का जो है शिकार हो गए कि अगर वो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता या उनके अंदर ऐसी कोई कोमॉर्बिड डिजीज पहले से नहीं होती, तो अगर उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन होता भी तो वो आगे जाकर 14 डेज की आइसोलेशन अख्तियार करने के बाद वो सेहतियाब होकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन उनको ऐसी बीमारियां थी कि उनको जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है ना वो किसी को मारता नहीं है, कोविड-19 के इन्फेक्शन से किसी की मौत नहीं होती, लेकिन जो उस शख्स के साथ साथ जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती है ना, कि अगर वो कोई शख्स अगर हार्ट का जो है अगर कोई मरीज है, उसके अगर दिल के साथ कोई अगर मसला चल रहा है तो वो उस मसले को मजीद इंक्रीज कर देता है, उस मसले को जो है इस हद तक मल्टीप्लाई कर देता है कि वो उनका वो ऑर्गन जो है बिल्कुल जो है डैमेज हो जाता है और फिर आगे जाकर जो है उस शख्स की डेथ हो जाती है। तो अब हमें जो है ना कोविड-19 से जो है सबक सीखने के लिए हमें उन तमाम फैक्टर्स को देखना है कि हम किन किन चीजों से हम जो है अपने आप को बचाकर और अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से हम उस लिहाज से चेंज करके कि हमें जो है ऐसी चीजों को ऐसी हमारी गजाई आदात को ऐसी हमारी जो है चीजों से अच्छा हमारे पास जो है ना मैम हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि व्हाट फूड आइटम्स इम्प्रूव इम्यूनिटी, तो इस पर आप दोनों में से जो भी आंसर करना चाहे कि फूड आइटम्स दैट इम्प्रूव और इम्यूनिटी। देखिए बात ये है, हाँ बोलो कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, देखिए इसमें जो है आपके पास जो है अगर हम डाइट के हवाले से बात करते हैं तो आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी है।
सिर्फ कोई एक फैक्टर या कोई एक न्यूट्रिएंट मिलकर जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर सकता। अगर आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है तो आपको अपनी ग़िज़ाई आदत के साथ साथ आपको अपना जो है बिहेवियर, आपको अपना जो है पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का दारोमदार सिर्फ आपकी जो है ग़िज़ा पर नहीं होता, आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटीज पर भी होता है, आपकी नींद पर भी होता है, आपका वाटर इनटेक करने का क्या सिस्टम है, क्या उसका जो है ड्यूरेशन है, उस पर होता है। और फिर उसके साथ साथ आपकी जो है साइकोलॉजी क्या है कि आपका जो है किस नेगेटिव अप्रोच की तरफ आप जा रहे हैं या आप पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ मिलकर आपकी डाइट, ये सब चीजें मिलकर जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जो है ऐसी कौन सी ग़िज़ा, तो एक बैलेंस डाइट, कि आपके पास एक ऐसी प्लेट हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर्स, तमाम चीजें आपकी उस प्लेट में मौजूद होनी चाहिए। तो वो तमाम चीजें मिलकर आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगी। कि सिर्फ अगर हम सिर्फ प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। पूरी एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप अगर डायबिटीज के मरीज हैं, तो अपने डॉक्टर से आप मशवरा करके अपने लिए एक के ग़िज़ाई चार्ट बनवा लें। तो उसके लिहाज से आपको मालूम हो जाएगा कि आपको अगर आप डायबिटिक के मरीज हैं तो आपको शुगर किस हद तक इस्तेमाल करना है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको नमक किस हद तक इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप अपने इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑलराइट, अब डॉक्टर अब्दुल रशीद आप इस बारे पे एक पॉइंट कर दें कि फूड आइटम्स के लिहाज से। और एक और क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ रिकवर्ड पेशेंट फॉर री इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19। तो ये दो क्वेश्चन पे आप अपने रिमार्क्स दें। हमें बात देखें, जो इम्यूनिटी की बात की सदर ने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। यू शुड हैव द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि उसमें आपका मीट भी हो, उसमें वेजिटेबल्स भी हों, उसमें फ्रूट भी हो। तो आपके तौर पे जो आपकी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं वो विटामिन बढ़ाती हैं, विटामिन सी बनाता है, विटामिन डी होता है, पोटाशियम होता है। तो वो तमाम के तमाम जो सिट्रस फ्रूट हैं वो आप इस्तेमाल करें। हमारा मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी फला चीज़ महंगी है, मैं वो ले लूँ। बात महंगी सस्ती की नहीं है। जो फ्रूट आपके पास इजीली अप्रोचेबल है आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और बहुत ज़्यादा पके हुए भी ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हो फ्रूट में मत। इसी तरह हमारे जो वेजिटेबल पकाई जाती हैं वो मैं ख्याल में मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि हमारे यहाँ जो है ना सब्जियों का कचूमा निकाल दिया जाता है पकाते हुए। बाहर जो होता है वो सब्जियां आमतौर पर रॉ खाई जाती हैं, तुली हुई होती हैं और उसमें अब फुल कुक नहीं होती है, हाफ कुक होती है, जिसमें ग़िज़ाइयत पूरी होती है। इसी तरह हमारे यहाँ वहाँ पे जो है बाहर आप देखें जो डाइट होती है उसमें ये है कि हमारा या तो बहुत ही ज़्यादा कच्चा रखते हैं या बहुत ज़्यादा उसको काला कर देते हैं, जैसे उन्होंने कहा था जला देते हैं। तो आपको प्रॉपर कुक मीट होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बात है जो सवाल आपने पूछा कि री इन्फेक्शन के चांसेस, देखें री इन्फेक्शन के चांसेस उस वक्त होंगे जब आपके पास इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। अगर आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई है तो उसका भी एक टाइम पीरियड है। ये नहीं है कि जी अगर आज मुझे इम्यूनिटी हो गई है तो पूरे साल चलेगी। इट कैन नॉट लास्ट मोर देन 2 to 3 मंथ। तो विद इन 2 to 3 मंथ में अगर आपको जो इम्यूनिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपको होने की चांसेस है। तो मतलब ये है कि एक दफ़ा आपको हो गया तो ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं है कि आपको हमेशा ना हो, हमेशा के लिए आपको दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखिए वैक्सीन में जो होगी ना उसमें यह है कि बहुत सारे अब इसके बाद अभी तक हम कोविड को समझ रहे हैं, समझ नहीं पाए हैं। इसकी बहुत सारी स्ट्रेन नई डेवलप हो रही है। कुछ जगहों पे जो है जो कोविड है उसको दूसरी स्ट्रेन से लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उनकी तादाद अभी बहुत कम है। Until we don't develop the vaccine, we cannot say anything surely. तो ये जो हमने कोविड हमारे को नहीं छोड़ेगा, ये अब हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा, किसी न किसी शक्ल में रहेगा। क्या आपके पास ये मुझे बताइए डेंगू चला गया? क्या आपके पास पोलियो चला गया? क्या आपके चिकन पॉक्स चला गया? स्मॉल पॉक्स चला गया? आपने कंट्रोल किया है, लेकिन मौजूद है, वैक्सीन अवेलेबल है, इस वजह से आपको होता नहीं है। तो इसलिए ये है कि अभी इस वैक्सीन आने में 1.5 साल है। पूरी दुनिया को होते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 2023 से पहले मत समझें कि कोविड से आपकी जान छूटेगी प्रॉपरली।
ये ठीक है। कोई और सवाल? नहीं एग्जैक्टली हमारे सारे ऑलमोस्ट हम लोगों ने एरियाज कवर कर लिए जो भी इस टॉपिक के अंदर आते थे। टाइम भी हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इनफैक्ट हम लोग 10 मिनट्स ऊपर चले गए क्योंकि डिस्कशन इतनी इन्फॉर्मेटिव थी और लोग काफ़ी इंगेजिंग थे इस सेशन में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएं, देन वी विल एंड अप। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम, डॉक्टर सदफ, डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रशीद एंड डॉक्टर भुट्टो, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे तो इस वजह से वो हमें हमारे साथ अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में सारे टेक्निकल इश्यूज को ख़त्म करके और उन्हें अपने सेशन में ज़रूर दोबारा इनवाइट करेंगे। और जैसा कि कोविड-19 है, ईद उल अज़हा, इस हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकते थे द यूथ थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन दे सकें ताकि आप लोग जो हैं वो अपनी ईद का मज़ा दुबाला हो सके आप लोगों का। आप लोग जितने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप लोग अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि ये ईद वो नहीं है जो हम लोग हमेशा ट्रेडिशनली हम अपने कल्चर में मनाते हैं। इस बार ज़रा सिचुएशन डिफरेंट है। इंशाल्लाह ये सिचुएशन हमेशा नहीं होगी, आने वाले एक दो साल में ये ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी प्रेडिक्ट किया है कि 1-2 साल तक हमारे पास वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 का जोर थोड़ा कम होता जा रहा है, तो अगर हम लोग अपने प्रिकॉशंस और SOPs को इसी तरह फॉलो करते रहेंगे तो हमारे पास केसेस कम होते रहेंगे और हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो इसी नोट के साथ जो है वो आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। आप लोग अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, गोश्त बांटें और लेट्स सेलिब्रेट योर ईद। प्रिकॉशंस का ख्याल रखें सबसे ज़्यादा, और दैट्स इट for tonight, and Khuda Hafiz everyone, and Dr. Sayyida Sadaf Akbar and Professor Abdul Rashid, आप लोग the Youth Think Tank के प्लेटफॉर्म से लोगों को एडवांस में ईद मुबारक करना चाहते हैं तो you have the time. थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। और सदफ भी बहुत यूट्यूब पे एक्टिव है, मैं भी यूट्यूब पे एक्टिव, हम दोनों एक्टिव है, तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देखिए। जो मालूमात और चाहिए वो हमारे यूट्यूब चैनल पे तमाम अवेलेबल है। मेरा YouTube चैनल है हार्ट एंड हेड। सदफ ने अपना अभी तक नाम नहीं रखा है, क्या रखा है? आपने क्या रखा अपने YouTube का नाम? जी रक्षिता, मेरे YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर, मेरे ही जो है नाम से। और ये कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आज हमने इतना अच्छा जो है सेशन किया और जो है लोगों के जो है सवालात के जवाब भी दिए। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे तरीके से और हेल्दी तरीके से जो है अपनी ईद की खुशियों से लुत्फानंदोज होंगे। और मेरी तरफ से सब लोगों को जो है बहुत बहुत एडवांस। चलें ठीक है, खुदा हाफिज एंड थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।